I'm going to share my screen. Right. So last time what we have done, I think we have done with the definition of salt, isn't it? Yes, sir. Yes. Okay, beta. Okay, so this we have to start with classification of salt right now. uh, there are different what 6 kind of salts are there right now. If you classify the salts, it can be classified into 6 types. That is number one, normal salt, basic salt, acidic salt, double salt, complex salt, and mixed salt. Let's start with normal salt. Right, normal, or we can say neutral salt right now. Neutral salt means what? It is neither acidic or nor basic in nature, right? Neither acidic nor basic means what? मैं acidic and basic जब बताऊंगा तो आपको clear ज्यादा अच्छे से होगा, right? Acidic means क्या होता है? वो acidic होता है, and basic salt जो है basic होता है, right? So normal salt जो है वो जो कुछ भी नहीं रहेगा वो normal salt के category में आएगा. So यहाँ पर क्या होगा? Normal salt में क्या होता है? The normal salt is a salt which is formed by complete replacement of hydrogen atom. We have studied the definition over here right now. What is salt? Salt is the compound which is formed by partial or complete replacement of hydrogen atom. Hydrogen atom जितने हैं right now किसके अंदर? Acid के अंदर HCl, H2SO4. If you talk about this, right, this kind of acid right now. So if all hydrogen are replacing right now, अगर सारे के सारे hydrogen replace हो रहे हैं, then we will say it is what here the complete replacement is take place, right? अगर एक निकलेगा, समझो एग्जांपल इसका एक निकल गया, एक बचा और इसकी जगह पे सोडियम आ गया, right? सोडियम SO4 आ गया. So here only one hydrogen is replacing, so we can say partial replacement is take place over here, right? Last time हमने ये सब देखा है, partial replacement and complete replacement. So the salt which is formed by complete replacement of hydrogen atom, जितने भी hydrogen atom है किसके अंदर? एसिड के अंदर, अगर वो completely replace हो जाएंगे तो जो salt form होगा उस salt को हम लोग क्या बोलेंगे? Normal salt, right? The salt which is formed by complete replacement of hydrogen atom is called as what? Normal salt. Understood or not? Right? समझा? And now replacement किसका होता है? तो always replacement कौन करेगा? Metal करेगा और ammonium ion. Replacement कौन करेगा? Metal करेगा और ammonium ion. Like this, if you take NaHCl plus NaOH right now, so what will happen over here? जगह नहीं, यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा HCl plus NaOH, right? So यहाँ पर क्या होगा? Na will goes to Cl minus and H will goes to OH, and we will get NaCl and plus H2O. So here instead of H now we have Na right now. So means what? Sodium metal replaces the H hydrogen atom, and all hydrogen atoms are replaced over here. So because completely all hydrogen are replaced, so we can say that take place by metal right now. So such kind of salt which is formed by this kind of replacement is called as what? Normal salt. Understood? Yes or no? If you take hydrogen atom right now, so hydrogen H2SO4, if you add NaOH in it, what will happen, beta? This Na will replace this hydrogen, and only one sodium is there, so we will get what? NaHSO4. Here one hydrogen is remaining over there right now. एक हाइड्रोजन रह गया, अभी पूरा completely replace नहीं हुआ, इसका further again reaction करेंगे NaOH के साथ, then I will get Na2SO4. What I will get? Na2SO4. So this salt Na2SO4 is what? Nothing but a neutral salt or normal salt, because here no hydrogen is there. All hydrogen which were there in acid is replaced. But if you talk about this acid, this salt,
This is also salt, but it consists of hydrogen, and it consists of hydrogen. It is formed by partial replacement. So this is not acidic salt because it consists of hydrogen, isn't it? बताऊंगा हाइड्रोजन एसिडिक सॉल्ट का. So वही point है, normal salt is a salt which is formed by complete replacement of hydrogen atom of acid by metal atom or metal or ammonium ion, isn't it? Clear? समझा? Yes, sir. जब हाइड्रोजन एटम जो है एसिड में से अगर रिप्लेस हो जाएगा पूरे की तरह से, तो जो सॉल्ट बनेगा उसको नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट? एसिड सॉल्ट. मैम, नेक्स्ट वन इज एसिड सॉल्ट. व्हाट इज एसिड सॉल्ट? मैंने अभी बता दिया आपको. क्या होगा अगर रिप्लेसमेंट के बाद पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, दो हाइड्रोजन है ना, टू हाइड्रोजन आर देयर, only one hydrogen is replaced by sodium metal over here. Na is replacing only one hydrogen and we are getting NaHSO4. So partial replacement, right now the salt which is formed by partial replacement of hydrogen atom of acid, right now polybasic acid. Polybasic acid means what? ऐसा एसिड जिसके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. पॉलीबेसिक एसिड मतलब क्या? वो एसिड जिसके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और उसमें से क्या होगा, एक या मतलब एक ही हाइड्रोजन जो है वो, या जितने हाइड्रोजन है उसमें से कुछ हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो रहे हैं और कुछ रह जा रहे, कुछ हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज रह जा रहे. सच काइंड ऑफ सॉल्ट जो फॉर्म रहेगा उसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिडिक सॉल्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट ना, द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय पॉलीबेसिक एसिड. पॉलीबेसिक एसिड मतलब मींस व्हाट? ऐसा एसिड जिसके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, राइट. उसमें क्या होगा, अगर जितने एक से ज्यादा, एग्जांपल किसी के पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, 2 अभी भी बचे हुए, या 2 हाइड्रोजन थे पहले से, उसमें से एक रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है. तो ऐसा रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर हाइड्रोजन बच जाता है तो उसको, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट. तो वापस रिपीट करते हैं, व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट? इट इज अ सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट ना. फ्रॉम किसके किसके जरिए, किसमें से कर रहे हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट? फ्रॉम पॉलीबेसिक एसिड. किसके जरिए कर रहे हैं? बाय मेटल और अमोनियम आयन. अंडरस्टूड? Yes, sir. एंड सच काइंड ऑफ सॉल्ट, व्हेन सच काइंड ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म, कब फॉर्म होगा? तो जब मैं अगर यहाँ पर क्या करूंगा, एग्जांपल H2SO4 लिया, H2SO4 में NaOH डाला, क्या डाला? NaOH डाला और NaCl डाला, वॉट एवर कुछ भी आप ऐड करो, तो NaOH डाला समझो एग्जांपल. तो यहाँ पर Na ने क्या किया? रिप्लेस किया, राइट ना. और क्या है? HSO4, NaHSO4 बना, बराबर. अगर फिर से मैं NaOH डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पर Na2SO4 मिलेगा. क्या मिलेगा? Na2SO4. बट अगर मैं ये डालू ही नहीं, मतलब क्या, 1 मोल ऑफ NaOH ही ऐड करूँ, है ना, 1 मोल ऑफ NaOH ऐड करूँ, इसका मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अगर मैंने क्या किया? बेस ऐड किया, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा तो वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट. समझा? पॉलीबेसिक एसिड में अगर आपने बेस जो ऐड किया, सफिशिएंट नहीं बेस के ऐड किया, अगर बहुत ज्यादा बेस ऐड करोगे, सफिशिएंट अमाउंट में बेस ऐड करोगे, तो यू विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, है ना. बट अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में बेस ऐड करोगे तो यू विल गेट एसिडिक सॉल्ट, बिकॉज NaOH हम लोगों ने बेस पूरा ऐड नहीं कर रहे, तो न्यूट्रलाइजेशन के जितना, एग्जांपल अगर 3H है तो 3H के लिए 3 OH लगेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए. बट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ सिर्फ 2 OH, तो एक H ऐसे ही रह जाएगा, तो वो जो H है वो एसिडिक बिहेवियर करेगा, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर वही चीज है, अगर मैंने बेस इनसफिशिएंटली ऐड करूंगा, देन जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. और इन शॉर्ट अगर कोई पूछेगा एग्जांपल पता करो कि एसिडिक सॉल्ट क्या है, तो जो सॉल्ट के अंदर आपको H दिखेगा वो एसिडिक सॉल्ट है. एसिड क्या होता है? जिसके अंदर H होता है ना. यहाँ पर ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर H आपको दिखेगा तो वो एसिडिक सॉल्ट. एग्जांपल NaHSO4, NaHSO3, NaH, Na2HPO4, NaH2PO4, NaHCO3, Na, राइट ना. सो ये सब एग्जांपल है किसके? H अगर आ गया इसका मतलब क्या? एसिडिक सॉल्ट है. अगेन और एक पॉइंट क्या लिखा है? एसिड सॉल्ट आयोनाइज इन वाटर
and form hydronium ion. Therefore shows all property of acid. Acid की property क्या होती है? Acid when dissolved in water, it form what? H इसको दे देगा और it form H3O plus ion. And with जो compound ऐसा काम करता है, the compound which form hydronium ion in water, it is called as acid, right ना? तो अगर मैं बात करूंगा NaHSO4, right ना, NaHSO4, so ये क्या करेगा? If you add this in water, so इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है? वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो लूज आसानी से कर सकता है, तो ये हाइड्रोजन को वो दे देगा और देने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर H3O plus बन जाएगा। क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। बिकॉज दिस काइंड ऑफ सॉल्ट ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, so they are also acidic in nature और they shows all properties of acid। क्योंकि ये सॉल्ट के अंदर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी है, बिकॉज उनके अंदर हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो है वो जब पानी से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन लाइक एसिड, तो इसीलिए वो एसिडिक बिहेव करते हैं और जितनी भी एसिड की प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी ये भी शो करते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, बेसिक सॉल्ट। बेस क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ OH, है ना? तो ऑब्वियसली ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर OH आपको दिख जाएगा, इसका मतलब क्या है? OH मीन्स हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन इज देयर, राइट ना? तो सच काइंड ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेसिक सॉल्ट, राइट ना? सो बेसिक सॉल्ट आर द फॉर्म बाय अगेन पार्शियल रिप्लेसमेंट। कंप्लीट से नॉर्मल बनता है, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट से एसिडिक एंड बेसिक बनते हैं। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ट्राई और डाई एसिडिक बेस, मतलब ऐसा बेस लिया जिसके अंदर क्या है? एक से ज्यादा OH हो, एक से ज्यादा OH रहेंगे। जैसे एग्जांपल PbOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, राइट? AlOH thrice, right? So this kind of base is called as polyacidic base. क्या कहलाते हैं? Polyacidic base means what? Polyacidic means poly means more than one, acidic means OH, right? And base is what? OH. Means hydroxyl group is there. So polybasic या polyacidic base means what? इसके अंदर एक से ज्यादा OH रहेंगे, उसको बोलते हैं polyacidic base. So यहाँ पर ये बेस पॉलीएसिडिक बेस है, डाईएसिडिक है, ये डाईएसिडिक है। AlOH thrice is triacidic base, right ना? So such kind of base, अगर इसमें अगर मैं एसिड ऐड करूंगा, एग्जांपल if I take example of AlOH thrice, right? If I add HCl in it, what will happen? This H will goes to OH minus and what I will get, right? ये Cl क्या करेगा? OH को ले लेगा और क्या बनेगा? वाटर फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। अब बचा क्या? Al और इसके अंदर OH कितने बचे? 2 OH आर देयर एंड एक OH की जगह पे Cl आ गया। सो बिकॉज यहाँ पर 2 OH है ना, राइट ना? अभी भी OH बचा हुआ है, बिकॉज OH बचा हुआ है और AlCl एक सॉल्ट फॉर्म हो चुका है। सॉल्ट फॉर्म होने के बावजूद उसके अंदर OH बचा हुआ है, तो सच काइंड ऑफ बेस इज कॉल्ड एज बेसिक बेस। इवन अगेन अगर इसके अंदर आप वापस से अगर मैं इसमें HCl ऐड करूंगा, तो H क्या करेगा? ये क्या करेगा? OH से ले लेगा एंड वाटर फॉर्म करेगा एंड अगेन व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट AlCl2 एंड साथ में ब्रैकेट में आएगा OH, एक OH बच जाएगा। ये भी क्या है? बेसिक बेस है, बिकॉज क्या है? अगेन यहाँ पर क्या है? OH जो है हमारा एक बचा हुआ है। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, समझा? sir. Right? So if OH is there in your salt, then you will say that it is a basic salt. It is a basic salt. तो OH कब बचेगा? सॉल्ट के अंदर कब OH बचेगा? जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। अगर कोई मैंने एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाल दिया, इनसफिशिएंट नहीं डाल, एसिड बहुत ज्यादा डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो एसिड क्या करेगा? जितने भी OH है ऑल OH को रिप्लेस करेगा, है ना? इफ आई ऐड sufficient quantity of what acid, then what will happen? It will replace all OH, right now, which is present, which is there in what? Base. बेस में जितने OH सबको रिप्लेस करेगा और OH बचेगा ही नहीं, तो सच काइंड ऑफ सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट, बिकॉज OH बचा ही नहीं। बट अगर एक भी OH बच जाएगा, देन वी विल से इट इज अ बेसिक सॉल्ट। अंडरस्टूड? सो डेफिनेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट वुड बी व्हाट, राइट? क्या रहेगा बेटा? The salt which is formed by partial replacement
ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने भी है उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग पार्शियली, पूरी तरह से नहीं कर रहे, कुछ रह जाएंगे तो पार्शियल रिप्लेसमेंट करेंगे, राइट ना। किस में से करेंगे? एसिड में से, एसिड के जरिए करेंगे। बाय किसके जरिए करेंगे? एसिड के जरिए करेंगे। वही बोल रहे हैं हम लोग कि द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बेस, पॉलीएसिडिक बेस बाय एसिड is called as what? Basic salt. Understood? Yes, sir. Any doubt is there? Yes, student. No. Now double salt. Double salt बहुत फेमस है, नाम तो सुना होगा डबल सॉल्ट। आपने फिटकरी देखा होगा, फिटकरी घर में यूज होती है, राइट ना, हम लोग यूज करते हैं फिटकरी, Yes, जिसको sir. एलम बोलते Yes, हैं, है ना, sir. पोटाश, Yes, sir. पोटाश एलम, है ना। तो दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, फिटकरी। मोहर सॉल्ट, डोलोमाइट। मोहर सॉल्ट is also called as FAS, ferrous ammonium sulfate. The name of this compound is what? Ferrous ammonium sulfate. So these salts are called as double salt. Why these are called as double salt? Because it consists of two salt. It is a mixture of two salt. देखो K2SO4 and Al2SO4 thrice. So here potassium sulfate is there and aluminum sulfate is there. If you talk about more salt, ferrous sulfate is there, ammonium sulfate is there. So two kind of salt is there, right? It is a mixture of what? Two kind of salt. If you dissolve this salt, right? ना simple सी बात है, अगर मैं इसको dissolve करूंगा पानी के अंदर, what you will get? You will get two salt, right? ना यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है. It is formed by what? Two simple salt, दो simple salt से बना हुआ है, that dissolve in water and crystallize together, right ना? वही चीज बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये डबल सॉल्ट कैसे फॉर्म किया गया है? जब दो सॉल्ट को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, एग्जांपल मैंने पानी लिया और इसमें क्या किया, ए सॉल्ट डाला, बी सॉल्ट डाला, राइट ना, बी सॉल्ट डाला, तो मैं अभी इसको सॉल्ट को, ये जो सोल्यूशन है वो क्या बोलूंगा? ए बी सॉल्ट सोल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ए बी सॉल्ट। डबल सॉल्ट है, एक सॉल्ट और दो सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट है, तो ये डबल सॉल्ट का सोल्यूशन कहलाएगा। तो यहीं पे वही बोला है, द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय व्हाट यूनियन ऑफ टू सॉल्ट। दो सॉल्ट को हम लोग कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, मिक्स करेंगे, राइट ना, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट, राइट ना, बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, फॉर्म कैसे करते हैं? दो सॉल्ट को लिए उसको पानी में डिसॉल्व कर दिए, मिक्स हो जाएंगे दोनों सॉल्ट, और हम लोग को जो बनेगा वो क्या है? डबल सॉल्ट कहलाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. प्लीज अंडरस्टूड और नॉट? अदर स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो। Yes. Understood, sir. Okay, beta. Now mixed salt. Mixed salt or what? Here it is also mixed salt, or maybe mix हो रहा है बेटा, but यहाँ पे हम लोग mix कर रहे हैं दो salt को, but both salt are different. Both salt are what? If you write the structure or formula of this salt, right now, so you will get that formula is what? We can differentiate the formula K2SO4 and Al2SO4 thrice. दोनों सॉल्ट का फॉर्मूला अलग अलग है, मिक्स नहीं हुआ है। K2SO4 में पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अलग अलग है, दिख रहा है। फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्मूले दिख रहे हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट मिक्स सॉल्ट, राइट ना, यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी दो सॉल्ट को मिलाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट को मिलाया जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग बिकॉज यहाँ पे मिलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है? रिएक्ट कर जाता है, एंड दो सॉल्ट जो है रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा उनका फॉर्मूला मिक्स हो जाएगा। एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट मिक्स होकर क्या बनेगा? पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट। सो सच काइंड ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट आर द सॉल्ट व्हिच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल, राइट ना। These are the salt which consist of what? More than one basic or acidic radical. Understood? Yes, student? समझा बेटा? Yes, sir. वापस रिपीट करता हूँ, यहाँ पर क्या होता है? मिक्स मैं रिपीट कर देता हूँ पहले, फिर थोड़ा सा काम आया फिर करता हूँ। तो यहाँ पर पहले समझ के लो, पहले ये फॉर्म कैसे होते हैं। अगेन ये भी वैसे ही इससे पहले जैसे किया था कि दो सॉल्ट को जब हम लोग कंबाइन करेंगे
तो कंबाइन करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो क्या है, हमारा मिक्स सॉल्ट बनता है। एक मिनट मैम, चेक ले लो शेखर साहब से। हाँ चेक, ये पोस्ट डेट चेक है आगे का। तो ले लो ना, आगे का नेक्स्ट मंथ का बी दे रहे ईडीसी। नहीं पैसा लिए एक मिनट वेट हाँ स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, ओके मैं अगेन रिपीट करता हूँ। मिक्स सॉल्ट जो है वैसे ही है जैसे डबल सॉल्ट थे। यहाँ पे भी क्या है, दो सॉल्ट को क्या है कंबाइन कर दिया गया है, और दो सॉल्ट को जब कंबाइन करेंगे आफ्टर कॉम्बिनेशन और मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट यू विल गेट डबल सॉल्ट एज वेल एज व्हाट मिक्स सॉल्ट, राइट ना। बट there is a difference between double salt and mixed salt. What is the difference between double salt and mixed salt? We will see that now. In mixed salt क्या होता है, दो सॉल्ट को मिक्स तो कर रहे हैं हम लोग, दो सॉल्ट को जब हम लोग मिक्स करें यार, दो सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग के बाद उस केस में जो नॉर्मल सॉल्ट है डबल सॉल्ट है उसमें क्या होता है, दोनों सॉल्ट अलग अलग रहेंगे। लाइक व्हाट फेरस सल्फेट Fe2 FeSO4 राइट ना, एंड अमोनियम सल्फेट NH4 राइट, ट्वाइस SO4 राइट ना, अमोनियम सल्फेट फेरस अमोनियम सल्फेट राइट ना। तो दोनों अलग अलग दिख रहे, डॉट वाटर इज देयर राइट, हाइड्रेटेड फॉर्म इज देयर। तो ये दो अलग अलग सॉल्ट अलग अलग दिख रहे हैं। बट इन केस ऑफ मिक्स सॉल्ट जब दो सॉल्ट को ऐड करेंगे दे विल व्हाट combine together and they will form a single formula like NaKCO3, sodium potassium carbonate, right ना। So in such kind of salt you will get either two type of cation, दो cation रहेंगे अलग अलग, or you will get two kind of anion। यहाँ पर एग्जांपल देखो CaOCl2, so this is anion, oxide is anion and Cl is anion। तो दो अलग अलग anion मिले आपको और दो अलग अलग cation। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें दो अलग अलग आपको कटायन, दो या दो से ज्यादा कटायन मिलेगी, या दो या दो से ज्यादा क्या आएंगे अनायन मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट बोलेंगे। यहाँ पर वही बोल रहा है बेसिक रेडिकल क्या है, द सॉल्ट विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मीन्स व्हाट, कटायन, एंड एसिडिक रेडिकल मीन्स व्हाट, अनायन। तो यू कैन राइट कटायन अनायन ऑल्सो। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट कटायन और अनायन तो भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर ये लिखो तो बेटर है, जैसी मर्जी आपकी। सो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा कटायन रहेंगे या बेसिक रेडिकल रहेंगे और एक से ज्यादा क्या रहेंगे, अनायन रहेंगे, एसिडिक रेडिकल, राइट ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. एक ही बच्चे को समझा? Yes, yes, sir. Okay, madam. Now, last topic, last salt, last type of salt, that is complex salt. Now, what is complex salt? Obviously, the name itself suggests that what is complex salt. The structure of such compound is what would be complex. This kind of salt is nothing but a coordination compound, right? Now, what is coordination compound? You will say coordination compound जो है वो एक बहुत complex structure होता है, और ये क्या होता है? We will see in 12th standard because you have to study a chapter on it. इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है एंड ऑल। नॉर्मली लिगैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को, और जब डोनेट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सॉल्ट जो जिसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, और अगर उसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो आपको क्या आएगा, सिंपल एक चीज मिलेगी और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है इसमें क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड। मैं आपको एकदम समझा देता हूँ इसमें एग्जांपल देखो, ये जो AgCl है, राइट ना। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग दूसरा,
कोबाल्ट NH3 6Cl3, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल ये लेता हूँ, ये वाला छोड़ दो, मैं दूसरा ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपको जो मैं बुक में दिया मैं दूसरा नया एग्जांपल दिखा रहा था कि याद करने में इजी हो और या फिर आपको वैरायटी मिले। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया, इसका नाम है हेक्सा एक्वो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इतना बड़ा नाम है। मैं वी विल सी द नेमिंग इन 12th स्टैंडर्ड कि नेमिंग कैसे कर दें। तो यहाँ पर in this case two type of bonding is there between cobalt and ammonia, coordinate bond is there। कौन सा बॉन्ड होता है? coordinate bond is there। coordinate bond पढ़ा है हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा? coordinate bond पढ़ा है ना? we have studied ना in chemical bonding, yes Yes, sir. okay। and between cobalt and chlorine, this chloride ion राइट ना, इसके बीच में कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज है। आप मेंशन कर सकते, लिख सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है ये मेटल है, एक मेटल रहेगा हमेशा। ये कैसा होता है? एक मेटल होता है, मेटल होता है और मेटल के साथ कोई एक लिगैंड रहेगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको बोलते हैं लिगैंड। तो लिगैंड से जो अटैचमेंट है वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो ब्रैकेट के आगे या पीछे लिखा रहेगा, यहाँ लिखा होगा या तो यहाँ पे लिखा होगा। आप जब भी कॉम्प्लेक्स आयन को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को देखेंगे तो उसके आगे या पीछे आपको दिखेंगे कुछ ना कुछ। तो जो आगे या पीछे लिखा हुआ है वो किससे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? दैट इज लिंक विथ व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। जो आगे या पीछे लिखा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड वी नो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ना बेटा, जो M और ये लिगैंड के बीच में, ये लिगैंड समझो, इसका मतलब इसके बीच में जो बनेगा ना वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो वो टूटेगा नहीं। आप इसको डिसॉल्व करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे तो ये बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड वो ये टूटेगा नहीं। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो आगे और पीछे ब्रैकेट के जो बाहर है ना वो वाले चीज का बॉन्ड टूटेगा। एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल लिए इसमें, तो इसका मतलब क्या? ये जो Na वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा। Na अलग हो सकता है, Na जो है सेपरेट आउट हो सकता है। व्हाट अबाउट Ag and Cn? So Ag and Cn will not be separate out because they are what? Linked with what? Coordinate bond। तो जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे you will get what? Na plus ion। Na will be, Na is linked with what? Covalent bond, so it will be separated out। But if we talk about AgCN, AgCN is linked with what? Coordinate bond, because of that they will not separate out and you will get this complex as it is। So this complex ion will form as it is right now। और AgCN minus, Na की वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है। तो +1 अलग हो गया, जब +1 अलग हो गया तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा? -1 आएगा। बेटा ये आपको कोई भी इसमें करेंगे तो आपको अलग अलग चीजें आती है। एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस, इफ यू थैंक यू। So, 2 minutes. एक मिनट मैम, एक मिनट बेटा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस है इसलिए। सो अंडरस्टूड बेटा, ये क्या मैं बोल रहा था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात क्या बोल रहा था? आप मैं एग्जांपल दे रहा था ये वाले को। इफ यू डिसॉल्व दिस काइंड ऑफ सॉल्ट K2SG राइट ना, SgI4 राइट, इफ यू dissolve this in water
what you will get, these will separate out. So K plus will separate out. How many K plus is there? 2 moles of K plus, so 2 K plus will separate out, and we will get a complex of Hg, right? Hg and I4, right now? And the valency of this complex will be what? Because plus how many charge is there in cation? +1 multiplied by 2 means +2. So +2 अगर निकल गया तो उसमें चार्ज कितना आएगा? -2 आएगा. Understood? Okay, sir. Yes, understood or not? So Yes, sir. what is complex salt? It is a salt which on dissociation gives a simple ion like this and a complex ion. दो आयन मिलेगा आपको ऐसा सॉल्ट जिसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे या डिसोसिएट करोगे, you will get two kind of ion. One will be simple one and other will be complex one. Understood? Yes, sir. This complex ion is also called as coordination sphere. We will see it in this is what this is called as what क्या बोलते हैं इसको? Counter ion. This is also called as counter ion. This is called as what coordination sphere. We will see it in 12th standard. So understood all of you this classification of salt? Yes, sir. All of you? Yes. Yes, Arya, Shaurya, Ariyesh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Please, कोई भी doubt है, you can ask me. Okay. So we have done with this, right? Now we will see the solubility factor, solubility of salt right now. So कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए. फ्यूचर में भी आपको जगह जगह पे आपको आएगा कि you have to deal with the solubility of salt right now, which is soluble and which is insoluble. So here it is mentioned which will be soluble salt and which will be not soluble. आप ये अगर टेबल याद कर लोगे तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, और फ्यूचर में कोई भी सॉल्ट आपके सामने आएगा तो you can directly say that this will be soluble salt and this will be not soluble. So what is given over here? So all salt which consist of what? Potassium, sodium and ammonium, right now? अगर कोई सॉल्ट में पोटेशियम है, सोडियम है, एग्जांपल सोडियम NaCl, right now? Potassium KCl, ammonium NH4Cl. So these kind of salt, the salt which consist of what? Na plus, K plus and NH4 plus are soluble in water. Understood? First point. Secondly, if you take nitrates, all nitrate salt or nitrite salt, not nitrate salt means what? Which consists of NO3, or nitrite salt means what? NO2, like NaNO2, NaNO3, right ना? So these salt are soluble in water. आपको nitrate दिख गया, आप blindly बोल सकते हैं कि these are soluble in water. Understood? All bicarbonate. Bicarbonate means what? HCO3 is there, right ना? Like sodium hydrogen carbonate, sodium bicarbonate, potassium bicarbonate. So these, right now, you are having HCO3 in this formula, right now. So such kind of salt are highly soluble in water, right? So all bicarbonate salts are soluble in water. Sulfate is there. Sulfate means what? SO4. If SO4 is there, like if you take example of Na2SO4, right? CaSO4, any SO4 salt is there and SO4 is there, then we can say that their salt will be what? Soluble in water. So SO4, all sulfate salt are soluble in water, right? And all chloride salt, as I told you, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, etc. CaCl2, etc. These are the soluble salt. Understood? Any doubt are there? No, sir. Okay. Here what is mentioned over here, देखो बेटा, अगर आपका सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आर देयर, राइट? तो इसकी अगर ये दिख गया ना, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आगे वो नाइट्रेट हो या क्या हो, उसके अगर वो कार्बोनेट भी रहेगा. कार्बोनेट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट बिकॉज अगर कार्बोनेट के अंदर सोडियम इज देयर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, so this is soluble in water because sodium is there, right now? Phosphate are insoluble salt, but phosphate means what? PO4, insoluble salt है, मगर sodium is there, Na3 means sodium or potassium is there, K3 is there,
So अगर पोटेशियम सोडियम अमोनियम दिख गया तो यू विल से दैट कोई भी आगे कुछ भी लिखा हो हम लोग ब्लाइंडली बोलेंगे इट इज सॉल्युबल इन वाटर. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. And remaining here, as I told you, carbonate, all carbonate are what? Insoluble in water. So if you say hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, potassium hydrogen carbonate are soluble but sparingly soluble in water. Sparing means what? 50% or we can say 40% soluble in water. Understood? Yes, sir. Yes. Yes. Okay, students, अगर time disconnect हो जाता है because less than 1 minute is left right now. So if link is disconnected, then you have to rejoin using same link, right ना? आपको same link का use करके rejoin करना है, right? Yes, sir. मैं screenshot ले लेता हूँ attendance का. Okay. Now insoluble salt, right? As I told you, bicarbonates are sparing soluble. Sparing soluble means what? The salt which is what partially soluble, 50% or 40% soluble in water. So bicarbonates are these, right?